Today we have on podcast with us Dr. Kamal Mustafa from Karachi. He completed his BDS from Liaquat College of Medicine and Dentistry in 2018 and then went on to do his house job from Karachi Medical and Dental College. Later on, he joined MCPS in the same college. He has been working as an FCPS Part 2 resident in oral and maxillofacial surgery at Abbasi Shaheed Hospital since 2021. He's great at his work, loves coaching, teaching, and even has an educational account जिसका link मैं यहाँ पे share भी कर दूंगी. So let's meet him. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। आप लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। My introduction, basically, I'm been living in Karachi since the beginning, and fast forward, I have completed my bachelor's of dental surgery from a private institution, Liaquat College of Medicine Dentistry, one of top colleges in the city, under the prestigious banner of University of Karachi. And since then, I have been affiliated with the government sector college, Karachi Medical and Dental College, and its hospital of Abbasi Shaheed hospital. Basically, I completed my BDS in the year 2018, completed my house job in the year 2019, and then due to one of my friends' die-hard force, I got enrolled into the MCPS program of oral surgery at Abbasi Shaheed Hospital, which I had a chance to complete 1 year of it. But at the end of that year, all praise to Almighty, I had a chance to clear my FCPS Part 1 examination, due to which I was able to convert it into my FCPS residency program in the same institution and same department. So you can say that since 2018 till now, I've been affiliated with Abbasi Shaheed Hospital in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery. And people know me in this city by my Instagram platform, which is Dr. KM Oral Maxillofacial Surgery, a very small initiative, and trying to help young graduates, young residents, teaching them some small and the huge part of the field, as well as developing motivation for young surgeons to give some more dedication for the oral maxillofacial surgery. I believe that is enough of my introduction. डॉक्टर कमाल, आपका काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ भी, हाउस ऑफिसर्स के साथ भी, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स उनको यूजुअली फेस करने पड़ते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट लाइफ में? स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए हुए होते हैं, एक स्टूडेंट वो होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से आए हुए होते हैं। दोनों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने दोनों सेक्टर देखे हैं क्लोजली। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट टाइम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से गुजारी है, वेयर वी हैड नो प्रॉब्लम ऑफ एनी रिसोर्सेज एंड all the best faculty and all the best academics and stuff were poured into our brains. But after that, I had been affiliated with a government sector where I have come to know about the problems related to the government institutions, the lack of resources, the mismanagement, and other problems related to it. So I can feel for students from both institutions. The students from the private side, basically, they have very good academic knowledge. No? If I can say for myself, because the faculty has focused on theoretical teaching and academics, so they are very far ahead of the government institutes. But I will say that the government institution students are very hardworking, and the confidence level is so high that most of the time I say that if I give a dental elevator to both students, and I'll say this is the patient and you go and do a dental extraction, I am 100% sure that the student from government institute will take that tooth out. Regardless of what happens, he or she will do it. But the student from the private sector will have problems, will be facing problems. So this is basically, I believe, the bar where the problem lies. One is having a good set of skills because of their hard work and confidence, but they're lacking in the academics, whatever the reason they are, lack of classes or
lack of interest or bunking and those sort of cultures. And this side on the private side, because they do not have that sort of flow, like my dental OPD in my hospital in the government sector is around 80 to 90, 120 patients per day. The level of exposure my house officer is having here is definitely not going to be available in the private college or the private hospital. Yes, there are going to be a flow, but there are different things. Same, I'll say, the procedures and the, the basically the technique. You can say the private sector institution student will have better set of knowledge regarding protocols, because there is in the private colleges there is more focus on the proper protocol, tissue handling, because they have facilities for it. Now they give time to their patients. But in government sector, as we say, because it's so haphazard and so much flow, that most of the time, this just wrap up game, just next patient to next patient to next patient, and time's up. So this time, you're not going to focus on all the protocols and all the, the soft aspects. You are going to be focusing on the hard work. So this is, I believe, a problem. So this can be overcome with the small management and some small, efforts. ओके डॉक्टर कमाल, आपको क्या लगता है कि एक बीडीएस ग्रेजुएट को राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. This is the hard truth which all students, young graduates, and anyone who is who wants to come into this field should know. In my time, I remember when we did our intermediate and we joined the institution for our MBBS. There was a person, एक सर थे, उन्होंने हमें ये बोला कि बेटा क्या करना चाहते हो? And because I belong to a family of doctors and teachers, everyone in my family is an MBBS doctor. Only me and my wife is a dental graduate. So at that time, I also had the same mindset to do MBBS just by looking at my both parents. So he told me this, that the current situation of the country. You're like, yes, we know. तो उन्होंने कहा कि आपने कभी देखा है डेंटिस्ट को सड़कों पे आते हुए एहतजाज करते हुए? बोला नहीं देखा हमने. कह रहा है आपने डॉक्टर्स को देखा है? हमने बोला बिल्कुल देखा है, खबरों पे आ रहे होते. तो बोला तो फिर आप डेंटिस्ट क्यों नहीं बन जाते? And he sort of planted that seed that you will never see a dentist on protest or strikes or having any sort of problem. And that was at that time was a truth. So I started to gravitate towards this thing. Then I'll say Dr. Naveed Rashid Qureshi, Professor Dr. Naveed, principal of LCMD. He was also one of my ideals. So at the time of interview, I saw him and I changed the idea of from MBBS to BDS. So these things, young graduates should know that after completing BDS, things are not going to change rapidly. They have to work hard. They have to struggle. The real struggle lies ahead. They have done their this struggle of studying academics, going through the class culture. Now they have to go into the professional side of it, and that's really very harsh. Most of the time I see the young graduates are often complaining that 15,000 20,000 मिल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, internship पे रख के they don't help us, they don't pay us. So I'm like, yeah, this is part of job. You should know. We all have gone through the same thing. I have done unpaid work for 2 years in my life, so I can feel what you're saying. So these things they should know. They should also know that this in our country there's a huge problem that most of the places there is people don't focus on merit. So they have to adapt to this culture also. You can't just go around saying I've seen accomplished and very good successful candidates having very good marks, gold medals, like that, those stuff, and they're often complaining that I'm not even able to secure a job. So that is a very bad aspect. So but I say this take time to develop your skill, do some hard work, make a name of yourself by achieving something rather than BDS.
मेरा एक दोस्त बहुत अच्छी बात कहता था, वो कहता था कि बीडीएस जो है ना वो आपकी एंड गोल नहीं है, इट्स बेसिकली योर स्टार्ट इन द फील्ड. मैट्रिक का एग्जाम आपने किया है, यू हैव जस्ट पास योर 10th क्लास एंड नाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड. And I also believe this thing that most of the time people ask me that what is there in BDS. So I say that I have not yet found it, but once I'll do, I'll tell you. So they ask me, what is your concept of finding it? तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है कि बीडीएस में मतलब क्या, कितनी सक्सेस है, क्या है, कितना गहरा है ये, तो मैं उसको ऐसे ही बताऊंगा कि जब तक मैं एक फील्ड के टॉप पे नहीं जाता, वो मैं बिलीव करता हूँ वो एफसीपीएस है. कोई भी फील्ड हो, ऑपरेटिव हो, ऑर्थो, सर्जरी हो, बट दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएशन ना. सो आफ्टर बीडीएस आई विल कंप्लीट अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, देन आई कैन टेल यू that this is what BDS or dentistry scope is in this field. So this is how I believe young graduates should know these problems. अच्छा डॉक्टर कमाल, ये सब कुछ माइंड में रखते हुए आपको क्या लगता है कि एक रिसेंटली कोई बच्चा अगर ग्रेजुएट हुआ है तो उसको अपने एम्स और गोल्स किस तरह से डिसाइड करने चाहिए? क्या उसका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए और फिर उन पे वो फोकस और डिटरमिनेट किस तरह से रहे? अपने यंग हाउस ऑफिसर्स को मैं रिसेंटली यही बता रहा था, इस टॉपिक पे ही बात कर रहा था कि आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होने वाली है लेट्स से इन 3 to 4 months. So what should your aims and objectives should be? So I asked the class. मैंने क्लास में पूछा उनसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कितने करना चाहते हैं, कितना जो है क्लिनिक करना चाहते हैं, कितने बाहर जाना चाहते हैं, या कितने जो है वो फील्ड स्विच करना चाहते हैं. जी. तो द रिजल्ट्स वे सरप्राइजिंग. मोस्ट ऑफ देम जस्ट वांटेड टू leave this country and go someplace. So it's fine by them. I have no issue with them. But almost half or 40% of the class were like they wanted to go in post graduation. So I was like, if you are willing to go for post graduation, then make your aims clear, what you want to do. I myself, when I was in my house job, I was not interested in the FCPS program. There are two reasons for me doing FCPS. I would like to say that one is my mother's will, because she's a gynecologist and she was not able to do FCPS, so it kind of came over me. And second was my friend. There is my friend Dr. Hassan, and he really forced me into this because he was, I can say, a bit crazy about doing FCPS. So he bit forced me along. Unfortunately, he was not able to clear his part one, but alhamdulillah, I did mine. So I still give all thanks to him. So I told those students that focus on your program, whatever you're doing. As I was thinking of doing MDS in oral pathology at that time in my house job. But it came down, I really had more focus and more gravitation towards the surgery side. You know that I don't know what there is, but most of the time you unexpectedly gravitate towards surgery. Like I don't had any interest in the ortho or prosto side, so just made my way. So I told them to work on it. If you are planning to go for post graduation, choose which you want to do, either MDS, FCPS, MS, MSc, MCPS. So start preparing for it. If you want to go for FCPS, it's a long journey ahead. You have to study basics again. You have to study the whole anatomy of the body. You have to study whole pathology again. So regardless of wasting your house job time, you should go for it. Secondly, those students who said we wanted to start a clinic. So I again told them that you should now work towards some financial saving, or you should join some established people of our field and see how they are running their business. Learn from them. Because to say that we want to start a clinic is, and to do a clinic is two different things. I have personally seen this problem. So it's very easy to say that I'll start my clinic and I'll do, and patients will come and live happily ever after. But this is not the case when you're actually doing it. You have to see everything: the marketing aspects, the patient aspects, the finance aspects, everything. It's a huge thing to manage. So I would suggest to those graduates जो clinic करना चाहते हैं कि
आप किसी ऐसे क्लिनिशियन को ज्वाइन करें जिसके सक्सेसफुल बिजनेस हो और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हो, और उससे सीखें। आप सिर्फ ये नहीं सीखें कि मुझे इस्तेमाल करना सिखा दें या मुझे दांत निकालना सिखा दें, आप उससे सीखें, सर हाउ आर यू मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, व्हाट इज योर टर्नओवर, हाउ यू मेक ऑफ इट, हाउ मच ऑफ यू पुट इनटू सेविंग। देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड जो क्लिनिक कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी क्लिनिक चल रही है, वो मुझसे कहते हैं कि मैं हर पेशेंट पे 1000 रुपए जो है वो यूटिलिटीज रख देता हूँ। मैंने कहा बड़ी बात है। तो इसी तरीके से एक और मेरे कॉलीग हैं, वो बहुत शॉकिंग सी बात वो कहते हैं कि मैं इम्प्लांट लगाता हूँ एंड आई हैव अ फियर ऑफ फेलियर ऑफ इम्प्लांट्स, so he's charging a good amount for implants and he's successful in that side, but the fear has gotten him that he don't uses the money patient pays him for implant, he don't uses it until the implant is successful and he is loaded. So I'll say that these things are a bit worrisome. Secondly, if someone is willing to go out, most of the students want to go out, they want to study abroad or want to live abroad, work there. So I told them to learn about those things, find those channels, pursue those side. Because after completing your house job and you're going to say, I'll go someplace, I'll go Canada, I'll go US, and then suddenly you're like कि यार इसमें तो इतने पैसे लगेंगे, इसमें तो इतना टाइम लगेगा, इसमें तो लाइसेंसिंग, तो उससे बचने के लिए आप अभी से वर्क स्टार्ट करें. I know these people who have not even completed their house job and they went there and they're doing different things. They are not pursuing BDS there and they're successful. So this is what I believe, that if someone wants to do something after house job, they should aim and work towards those objectives. डॉक्टर कमाल, आपने काफ़ी सारी ऑप्शंस बताई हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई अंडर ग्रेजुएट जो है वो आगे FCPS चूज करते हैं, FCPS में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? I'm doing FCPS myself, जी. and I have heard this thing from my seniors and they heard this thing from their seniors. So it's kind of run in the fraternity that किसी ने FCPS किया है ना, आप उससे पूछेंगे कि FCPS करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बोलेगा FCPS करना चाहिए. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आई बिलीव के वो चल रही है. तो मुझसे भी कोई पूछता है कि क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ FCPS करना चाहिए. क्यों FCPS करना चाहिए? बिकॉज वही बात आ जाती है. आई बिलीव के अकेडमिकली कि सबकी कहीं ना कहीं बेस होती है. Everyone know if I'm going to ask something, यार कैनेडी क्लास बता दे, अब ये प्रोस्तो का सवाल है, I know about this thing. अगर मैं किसी से पूछूं कि हॉलीज रिटेनर कैसे लगता है या कैसे चलता है, ऑर्थो का सवाल है, they know about this thing. तो लेकिन क्लिनिकली अगर मैं उससे बोलूं ये करके दिखाओ, या इसको आप इम्प्लांट लगा के दिखाएं, या सिंपल आप फाइब्रोमा या कोई पैपिलोमा एक्सरसाइज करके दिखाएं, तो वहां पे डेंटिस्ट जो है ना फंस जाते हैं. तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि FCPS प्रोग्राम जो कि CPSP के थ्रू होता है, इट्स वेरी वेरी गुड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. इसमें क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर बहुत काम हो रहा होता है. रेजिडेंट्स को जो है वो क्लिनिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिल रहा होता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज स्केयर्ड ऑफ डूइंग सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस. एक बस फियर था कि कोई नर्व इंजरी ना हो जाए, कोई वेसल इंजरी ना हो जाए. तो with time, I believe at the end of my R1 year, first year, that fear gone away. Now I have no fear of it, and I'm much better at tissue handling and much better of exposing, preserving flaps. So मैं बिलीव करता हूँ कि क्लिनिकली भी जो है वो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी FCPS प्रोग्राम में बहुत अच्छी ट्रेनिंग क्लिनिकल साइड पे हो रही होती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोग्राम जो है वो मतलब दे आर नॉट अप टू द मार्क. MDS is making its mark in Pakistan. I believe that's a good sign. MS program is, I believe, one of the oldest program there is. It's also good. But I believe there is some theoretical aspect to it. I've seen MS trainees and residents not much focusing on the clinical side, but on the theoretical side of it. It's up to them. I don't know about that much, but what I can say of FCPS is I believe that if someone wants to live in Pakistan and wants to see their future here after completing BDS or MBBS, so they should go for FCPS program. It will change their life. एक मेरा दोस्त ये भी कह रहा था
आई पर्सनली फेल्ट दिस व्हेन आई बिलीव कि जो भी पार्ट 1 क्लियर करता है वो फील करता है ये। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज आल्सो अ रेजिडेंट इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो उसने मुझे आके बोला, और उस हम 3-4 दोस्त खड़े हुए थे और वो सबसे मिलता हुआ आ रहा था कि और अच्छा तुम्हारी हाउस जॉब हो गई, तुम्हारी हाउस जॉब हो गई, और उससे पूछता था क्या करना है, कह रहा है एफसीपीएस करना है। तो जब वो मेरे पास आया ना तो उसने बोला एफसीपीएस करो, जैसे तुम्हारा पार्ट 1 क्लियर होगा यू विल फील एलिवेटेड। किस तरीके से एलिवेटेड, कह रहा है यू विल फील अ डिफरेंस विद द अदर पीपल। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत बड़ी बात कर रहा है। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू गिव माय पार्ट 1 एग्जाम इन द सितंबर ऑफ 2020, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स ना, लाइक एक दोस्त सारे गाड़ी में भर के गए थे एक साथ देने। तो जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली वन। तो वो मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ था, ही वाज ऑन ड्यूटी इन द वार्ड, सो ही कॉल्ड लाइक आज रिजल्ट आ रहा है, तुम हॉस्पिटल ही आ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, विल आइदर सेलिब्रेट और विल जस्ट सिट क्वाइटली। तो हम वहीं पे थे। तो जब रिजल्ट आया ना तो ही अगेन केम क्लोज टू मी, वो फिर करीब आया, उसने मेरे कान में बोला हाँ फील कर रहे हो ऊपर ऊपर थोड़ा एलिवेटेड। मैंने कहा "हाँ यार फील हो रहा है कि कुछ किया है"। तो ये एक चार्म है, इट्स अ चार्म, इट्स अ फ्रेटर्निटी। और अच्छा है, एफसीपीएस करना चाहिए। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जो पार्ट है वो ये है कि पार्ट 1 की प्रिपरेशन थोड़ी एक्सटेंसिव है। और मैं इसमें माय पर्सनल ओपिनियन इज दिस दैट सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज आप किसी आप ग्रेजुएट को आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो आप उसको जज नहीं कर रहे, आप उसको एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, एक फ्रेटर्निटी में, एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान में आप उसको ही इज गोइंग टू बिकम फेलो और मेंबर ऑफ इट, तो आप उसको जज कर रहे हैं। तो उसमें पार्ट 1 की प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल है, वो दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्योंकि आपको अपने लिम्स भी पढ़ने पड़ते हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी द चेस्ट कैविटी, यू आर गोइंग टू स्टडी नेक एक्सटेंसिवली, न्यूरो सर्जरी आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, फार्मा इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। तो इट्स quite troublesome for those graduates who were not focusing on their basics in that undergraduate time। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ओपीडी में अक्सर, जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, मैं उनको बोलता हूँ भाई अभी आप पेशेंट छोड़ें, आप मुझसे ये नहीं बोलें कि मोबाइल दांत दे दें सर, मोबाइल दांत निकालूंगी या निकालूंगा। मैं कहता हूँ कि आप अभी जाके अपनी फार्मा सही से पढ़ें, आप अपनी पैथो अच्छी पढ़ें, ओरल मेडिसिन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आई बिलीव कि अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर कमिंग टाइम इफ यू आर गोइंग टू फोकस। वरना एक साथ बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अपनी बात करूँ तो न्यूरो सर्जरी पढ़ना दोबारा, दोस ट्रैक्स एंड एवरीथिंग्स एंड दोस लिम्स, हम लोग नहीं पढ़ते ग्रेजुएट में बीडीएस में, तो वो लिम्स पढ़ना पड़ रहा है, देन यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग दैट ब्रेकियल प्लेक्सेस एंड। तो खैर मेहनत की, अल्लाह ताला ने पास कर दिया, अब दूसरों को गाइड माशाल्लाह है कि अगर एफसीपीएस पार्ट 1 क्लियर हो गया है तो हाउ एंड वेयर टू लुक फॉर रेजिडेंसी। रेजिडेंसी बेसिकली अगेन आई विल से, आपने कोई एम तो बनाया होगा, आपने सोचा होगा कि मैं पार्ट 1 जब क्लियर करूंगी तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, कहीं पे 5 ऑप्शन भी हैं लेकिन कॉमनली 4 है, जिसमें ऑर्थोडोंटिक्स है, प्रोस्थो है, ऑपरेटिव्स है, एंडो है एंड द ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो आपने डेफिनेटली डिसाइड तो किया होगा। अभी रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट में एक अटैची आया था, ही वाज लाइक बस मेरे फादर मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मुझे मैक्सिलोफेशियल करो, उससे पार्ट 1 उसका क्लियर है बट मुझे नहीं करनी, मुझे ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री अच्छी लगती है। मैंने कहा आप यहाँ क्या, आप जाएं, आप जहाँ पे ऑपरेटिव की अच्छी ट्रेनिंग हो रही है या जहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं आप वहाँ जाएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तो ही वाज बिट गेटिंग अपसेट बाय लुकिंग एट द ब्लड एंड दोस थिंग्स यू नो। तो मैं, आप किसी ने सोचा ही होगा कि उसने क्या करना है, तो अब आप उसके लिए काम करें। देखें इंडक्शन लेना मेरे नज़र में पार्ट 1 से भी ज़्यादा मुश्किल है। पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा आपका, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी अटेम्प्ट में हो जाएगा, दे आर नो लिमिट्स ऑन द अटेम्प्ट्स ना। लेकिन जब आप इंडक्शन लेने आते हैं तो इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, इतना ज़्यादा फ्लो है कैंडिडेट्स का, मतलब आपको तो पता ही होगा कि आई गेस 4 टाइम्स एग्जामिनेशन हो रहा है पार्ट 1 का साल में। तो डेफिनेटली मोर एंड मोर ग्रेजुएट्स आर क्लियरिंग देयर स्टेप 1s एंड दे आर,
but the vacancies, the seats which are available are very less, near to I believe impossible. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि काम करना चाहिए अथॉरिटीज़ को, कि इसके ऊपर भी आप देखें इतने सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं और इंडक्शंस बहुत कम हो रही होती हैं, क्योंकि इंडक्शंस का एक क्राइटेरिया है ना, पहला रेजिडेंट जाएगा, जब उसकी ट्रेनिंग एंड होगी तो सीट वेकेंट होगी तो फिर कोई आएगा। अब इस तरीके से चल रहा है, तो अगर आप देखें जनवरी में इंडक्ट हुआ, फिर जुलाई में दूसरे इंडक्ट हुए, तो जनवरी वाले जब जाएंगे तो सीट्स कुछ फ्री होंगी, फिर जुलाई वाले जब जाएंगे तो कुछ सीट्स फ्री होंगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मसला है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों को मिलती है, अगेन देयर आर थिंग्स, मैं व्हाट आई बिलीव इज हार्ड वर्क। मैं, आप मुझसे पूछे आपको कैसे मिली, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं, क्योंकि हाउस जॉब केएमडीसी से मैंने की थी, और केएमडीसी में ही मेरे दोस्त ने मुझे जो है फोर्स करके एमसीपीएस में लगवा दिया था। एंड एमसीपीएस का जो ईयर था दैट वाज द कोविड ईयर 2020। तो देयर वर प्रॉब्लम, पीपल वर स्केर्ड। So my supervisor, who is still my supervisor, he came to me and he said that you are posted here in the college in the OPD, and if you do OPD for 4 months, because no one was coming, I'll get you the induction. I was like, this is the most I can ask for. I'm happy to do all the cases, because there's no one there to challenge me for case. OPD में मैं ही हूँ senior, मेरे साथ junior हैं, and I'm getting 100% of the cases. तो आई वॉज हैप्पी इन बोथ सिचुएशन कि मुझे 4 महीने काम भी ज़्यादा मिला, और मुझे जो है वो सुपरवाइजर जो है मुझे इस तरीके से भी बोल रहे हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आई सी एट दैट टाइम। तो ये एक फैक्टर था। दूसरा जो फैक्टर था वो ये था कि बिकॉज आई वॉज देयर एट दैट इंस्टीट्यूशन फॉर 2 years, and because I completed from the private college and I was there, so I was unpaid. I was unpaid trainee. I did my house job unpaid. I was in MCPS unpaid. So this thing really mattered. At the time of induction, the administration was like, this guy is here for 2 years and he's doing unpaid work. He deserves it, na? Like this. उन्होंने मुझे इस तरह ही बोला था, भाई तुम्हारा तो बनता ही है, तुम 2 साल से यहाँ पे हो। तो अगेन दिस वाज आई बिलीव ऑल अल्लाह डूइंग। तो मैं यही कहता हूँ अपने जो मुझे अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और डिफरेंट थिंग्स हैं, मैं आपको पता ही होगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप मेहनत करें, आप उस सीनियर के पास जाएं और उसके साथ आप बस अटैच हो जाएं। वो सीनियर खुद जो सुपरवाइजर है वो देख लेंगे, हार्डवर्क आपकी जो है वो रहेगा नहीं जाएगी, आपकी हार्डवर्क जो है वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। एंड it may take some time. There are my colleagues, my class fellows who graduated with me, and they completed their step 1 with me. They got induction on the 3rd year, the last year. You know, there's a small problem, like you have to get induction in the first 3 years after clearing part 1. So they got in the 3rd year. So I was like, see, you were getting disheartened, na? Allah made plans for you. So I've seen this thing. Very less people I've seen who have struggled with this problem. मिल जाती है, मेहनत करना होता है, आपने लगे रहना होता है। ये आप सो नहीं सकते। स्टेप 1 करने के बाद अगर मैं बैठा रहूँ कि मेरे पास इंडक्शन चल के आएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है, बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है। मुझे तो अब ये भी कहते हैं, एक दफ़ा मुझे एक सीनियर ने ये भी कहा कि सिंस यू हैव स्टार्टेड पोस्टिंग स्टफ दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर and more young graduates are following you. Alhamdulillah, all the people in the Karachi, all the colleges, there are people who know me. So he started saying, we are getting more influx. More and more people are seeing what is happening here, and they want to either be like you, or they want to be with you, or they want to be in the department. So I believe this is Alhamdulillah. So it's up to you. Yeah, if they are coming, you cater them, na, give them inductions. This is what I'll say. Make more surgeons. So this is one thing. I can tell you about some specialities. If a person who likes to do chair side stuff, na, like you RCT or crown cutting, prosto, so they should opt for it and go for it. But if there is a person who wants to come into the surgery side,
So they should know some things related to this. One of this, that you have to be on your toes. You are running here and there. Secondly, there's the call aspect. You have to do calls. There is emergency management. So this, I've seen this problem with especially the female candidates. They, because of desperation, they are just like, हमें कहीं भी इंडक्शन मिल जाए, हमें कहीं भी हमारा हमारा जो है टाइम बच जाए, और वो सर्जरी में आ जाती हैं। जब सर्जरी में आती हैं और फिर उनकी, हम 1 महीने बाद हम कॉल लगाए थे कि अब आपने कॉल करनी है। कॉल पे जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, गन शॉट्स आ सकते हैं, असॉल्ट्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ भी आ सकता है। तो एंड देन दे स्टार्ट टू गेट प्रॉब्लमेटिक। यार हम नहीं कर सकते, हम रात के 2 बजे नीचे ईआर में जाके हम नहीं देख सकते ये इतना ट्रॉमेटिक इशू और आरटीए और असॉल्ट्स। तो हमारी फैमिलीज हैं, देन द समटाइम द फैमिलीज आर क्रिएटिंग सम हर्डल्स कि भाई ये 24 घंटे वहाँ नहीं हम ड्यूटी करने देंगे। तो ये आपने सोचना होता है पहले ना। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे इंडक्शन मिल गई, अब मेरे हिसाब से सिस्टम चलेगा, ऐसा नहीं होता। आपने सिस्टम के साथ चलना है। तो मैं फिर उनको ये कह रहा था कि यार आप देख लें, फिर आपने अगर चेयर साइड ही काम करना था कि सुबह 9 to 2 आपने ओपीडी करनी है और घर चले जाना है, तो फिर आप सर्जरी पे क्यों आ गए? मतलब लेट दिस सीट उसको जाने देते हैं जो डिजर्व करता या करती। तो अक्सर मैंने देखा है लोग छोड़ के जाते हैं फिर, या स्विच करते हैं। तो ये एक है। तो आप फोकस करें और इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें। दूसरा तरीका बहुत अच्छा जो है, जो मैंने देखा है रिसेंट 1-2 सालों में, जो मैं यंग जूनियर्स को देख रहा हूँ, वो ये है कि आप अटैचमेंट पे आए। देखिए, अटैचमेंट पे आना का मतलब ये है कि एक तो आप फैकल्टी से फेमिलियर हो जाते हैं। एक, जैसे मैंने आपको बोला कि वो स्टूडेंट आ रहा था, अब वो स्टूडेंट रोज आ रहा है, हर ओपीडी में आ रहा है, हर ओटी में आ रहा है, एंड ही इज डूइंग नथिंग, जस्ट स्टैंडिंग देयर। This standing there also means something. At the end of the day, the senior knows, we know that this guy is putting in efforts. He's coming from a long place, and he's not getting any benefit for it. Just he's there to observe. So most of the time, supervisors या जो consultants होते हैं, they respect this thing and they get this thing. They give those people inductions. मैंने ये देखा है. I know these people who have been who are joined institutions for like 6 months, then they converted into 1 year, and they got what they wanted. They are happy now. तो रिगार्डलेस कि आप बैठ के जो है वो सोशल मीडिया पे या कहीं ग्रुप में डिस्कस करते हुए बोलें कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, एंड डीमेरिट है और ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप थोड़ी मेहनत करें, घर से निकलें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, जाएं, देखें क्या काम हो रहा है, किस तरीके से रेजिडेंट्स जो है वो कंसल्टेंट्स के साथ है, कंसल्टेंट्स किस तरीके से केसेस कर रहे हैं। कोई ना कोई आपका, हाँ, अल्लाह ताला जो है ना वो रास्ते बनाता है। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अच्छा डॉक्टर कमाल, आपकी स्पेशलिटी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, तो आपको क्या लगता है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस? सॉरी, देखें, सर्जरी का जो इम्पैक्ट जो मैं बिलीव करता हूँ वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सब मेरे कॉलीग्स हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर्जरी जो है वो आपको थोड़ा सा ना एलिवेट करती है दूसरे फील्ड से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज दैट वी आर इन अ पार्क और सम प्लेस, एंड आई सी फैमिली रिलेटिव और मेरा छोटा भाई कोई गिर जाता है या उसको चोट लग जाती है या खून निकल रहा है, तो मुझे उसको एक्यूटली मैनेज करना आता है। मैं घबराऊंगा नहीं। वो खून का जो डर, वो जो इमरजेंसी का डर है, वो हमारे अंदर से निकल जाता है। ये मैं पर्सनली आई बिलीव दिस थिंग। आई हैव सीन माय सीनियर्स लाइक के असॉल्ट आ गया और हम वहीं थे उसको मैनेज कर रहे हैं और पीछे आरटी आ गया। देयर वाज अ टाइम एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी एंड लाइक 6 to 7 पीपल वर देयर एंड आई वाज शॉक्ड हाउ माय सीनियर्स दे वर सो काम। मतलब ये लिटरली एक स्किल दे हैव अचीव्ड, दे वर इसका ये कर लेते हैं, सो कामली दे वर मैनेजिंग थिंग्स। और जो हमारे हाउस ऑफिसर्स थे दे वर लाइक व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है डॉक्टर कमाल, ये क्या हो रहा है। तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन इट। तो ये मैं बिलीव करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को देखा है जो मेरे साथ एमकेट में थे या ग्रेजुएट्स थे, उनके बच्चों को कुछ हो जाए, कुछ चोट लग जाए, लेसरेशन लग जाए छोटी सी, तो वो किस तरीके से पैनिक हो रहे होते हैं। हम
मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के बच्चों को कोई चोट लगे हो पैनिक ना हो, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। सेकेंडली इसका दूसरा इम्पैक्ट ये है कि आप जो है दूसरी फील्ड से, दूसरे जो जैसे लाइक एनेस्थीसिया है, लाइक जनरल सर्जरी, आप इनके साथ आपका इंटरलिंक होता है। हम रोटेशंस पे जाते हैं, मेडिसिन की रोटेशन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है वो कंपल्सरी की है सीपीएसपी ने, तो आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी गुड बेनिफिट। हेलो, इज द वीडियो स्टक? हाँ, इट्स ओके। तो बहुत अच्छी बात है इसमें कि एक डेंटल ग्रेजुएट को या रेजिडेंट को जो है maxillofacial के is getting exposure from the medical side. This is very good. At least you should be able to diagnose the common diseases that there are. ऐसा भी हुआ है कि हमने देखा एक पेशेंट आया है, जूनियर जो है उसके पूरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं ओरल कैविटी की, और सब कुछ करने के बाद जो है इतना बड़ा नोड है उनके यहाँ सर्वाइकल लेवल पे, और जब वो देखा उसको, हम यंग रेजिडेंट्स ने देखा, उसके बाद जब हिस्ट्री पता लगा दैट पेशेंट वाज टीबी पॉजिटिव, ट्यूबरकुलोसिस, और वो एकदम से मॉल चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, देन यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्लड बॉर्न डिजीजेस, तो उसको अच्छा केटर करना, मेडिसिन एस्पेक्ट उसका क्या है, सर्जिकल एस्पेक्ट क्या है। लाइक मैं जब रोटेशंस पे गया था 2 years बैक, तो मेरा फ्रेंड था जनरल सर्जरी में, ही वाज चीफ रेजिडेंट एट दैट टाइम इन अब्बासी, एंड ही वाज लाइक कि यार तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। मैंने कहा तुम जो बोलोगे। तो उसने बोला आज से जितनी लेसरेशन आएंगी, जितनी स्टिच होगा, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ, जितने भी हम जो है वो केस करके स्टिच करना होगा, उसको क्लोजर करना होगा, वो कोई भी एब्सेस आएगी उसकी आईएनडी, क्लीनिंग वुंड की, वो सब तुम करोगे। मैंने कहा तो दैट रियली हेल्प्ड मी, ही वाज देयर विद मी, एंड आई बिलीव दैट उसका बड़ा हाथ है इसमें कि उसने मुझे सूचर्स और मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी एस्पेक्ट पे, आप ज़रा ओरल कैविटी में एक, मैं अपनी बात बताऊं, उसने इतने बड़ा नीडल होल्डर मुझे उसने दे दिया स्टिच करने के लिए एब्डोमेन। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा हमारे तो नीडल होल्डर बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो ही वाज लाइक नहीं यार तुम्हें सब आना चाहिए, तुम याला भी लगाओ उसको, सब क्यूट भी लगाओ। और बहुत अच्छी मेरी वो रोटेशन थी 2 months की। आई बिलीव इट हैज प्लेड अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन माय ट्रेनिंग एंड इन टाइम टू कम। सेकेंडली जैसे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की मैंने बात की, इमरजेंसी में कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, कोई आपने आरटीए देखा, आप कहीं खड़े हुए थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, कुछ इशू हुआ, तो आपको एक बेसिक मैनेजमेंट, एक जैसे आप कहते हैं ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर बीएलएस, अपार्ट फ्रॉम बीएलएस देयर इज आल्सो थिंग एटीएलएस एंड एक्यूट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट एंड दीज थिंग्स, ये सब आपको जो है वो सर्जरी साइड पे ही आएगी। ये आई बिलीव ये दूसरी जो फील्ड्स हैं वो इसमें इतना ज़्यादा नहीं होती। तो अभी आज मुझे एक रेजिडेंट मिला था, जूनियर था मेरा, वो ऑपरेटिव में है वो, तो वो कह रहा था हमारी भी रोटेशन लगाएंगे सर्जरी में। तो मैंने कहा तुम्हारी क्यों लगाएंगे? कह रहा है एपिसेक्टमी करने के लिए। मैंने कहा सही है, आ जाना यार। तो ये दिस व्हाट आई बिलीव दैट द इम्पैक्ट ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज। वार्ड मैनेजमेंट होती है, इस पे भी बात है, वार्ड मैनेजमेंट होती है, पेशेंट की आईवी मेडिकेशन, ड्रग डोजेज, ये सब चीज़ें नॉर्मली जो रूटीन में नहीं होती, क्लिनिक पे आप ये सब नहीं कर रहे होते, लेकिन आप कोई मेडिकेशन चला रहे हैं, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या ड्रेन्स आपने प्लेस की हुई है, हम लोग ड्रेन्स प्लेस करते हैं, ड्रेन्स की मैनेजमेंट, सेप्टिक वुंड्स की, जैसे कोई आपका इन्फेक्शन है, सूडोमोनास इन्फेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो सर्जरी वाले कर रहे होते हैं, जनरल सर्जरी या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वाले कर रहे होते हैं, ये ऑपरेटिव या ऑर्थो वाले नहीं कर रहे होते। दिस इज व्हाट आई विल से, मेरे बहुत सारे दोस्त ऑर्थो में। अच्छा डॉक्टर कमाल, आपको क्या लगता है कि आफ्टर रेजिडेंसी जो है सर्जरी में क्या स्कोप है एक रेजिडेंट का? रेजिडेंसी सर्जरी में क्या स्कोप है? ये सवाल के दो जवाब है। एक जवाब वो है जो जिसने एफसीपीएस नहीं किया या नहीं कर सका या नहीं किया, एक जवाब वो देगा, एक जवाब वो देगा जिसने एफसीपीएस किया है। तो आप अगर उससे पूछेंगे जिसने नहीं किया, वो बोलेगा कि कोई स्कोप नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो एक डेंटिस्ट जिसकी 30 साल पुरानी क्लिनिक है, उसके पेशेंट्स होंगे, उसकी एक मार्केट बनी हुई है, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, और एक फ्रेश रेजिडेंट जो पार्ट 2 करके आया है वो क्या कमा रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, ये चीज़ें मैं डेली उस पर सुनता हूँ, जो लोग, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लाइक दिस, बट दे आर ऑफनली सेइंग दैट। एक मुझे बहुत
बहुत सीनियर डॉक्टर ने मुझे ये बात कही थी, मुझे उस वक्त फील भी हुआ था इन एट स्टार्ट ऑफ माय रेजिडेंसी। ही आस्क्ड मी कि यार तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि तुम जो हो वो एक प्राडो या लैंड क्रूजर से उतर रहे हो और तुम एफसीपीएस नहीं हो, और तुम एफसीपीएस हो और एक तुम छोटी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? एट दैट टाइम आई वाज आल्सो न्यू, सो आई वाज लाइक मुझे भी लैंड क्रूजर चाहिए। तो मैंने बोला फिर आप क्लिनिक पे आए, क्लिनिक करें, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी ये कर रहे हैं। बट एज टाइम ग्रू, जैसे जैसे टाइम आया, मैंने देखा कि यार ये सिर्फ इसमें नहीं, मैं जो कंसल्टेंट्स हैं दे आर ह्यूज नेम्स, पीपल नो देम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने कहा ये चीज उस लैंड क्रूजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी कि मुझे पीपल नो मी इन यूएस, पीपल नो मी इन जर्मनी, जैसे मेरे कंसल्टेंट्स हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी और मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो सक्सेस तो आ जाएगी, उसका मुजाहरा वो आपकी हार्डवर्क से रिलेटेड है, लेकिन एक आपकी पर्सनल वर्थ भी होती है। लाइक जैसे कि सिर्फ मैं बीडीएस पे खुश नहीं हूँ, मुझे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, एमडीएस होना चाहिए, एफसीपीएस होना चाहिए, एफआरसीएस होना चाहिए, मुझे अमेरिकन बोर्ड होना चाहिए। ये एक नॉर्मली आई बिलीव कि एक यंग ग्रेजुएट की ये होने चाहिए एम्स, कि यू शुड कम्पीट विद द वर्ल्ड। यू शुड नॉट बी लाइक कि यार मेरे 6 दोस्त हैं, अब सबकी लाइफ अलग है, everyone is different, they are not going to get the same facilities as you, or you are not going to get the same facilities as them। तो ये कि मेरे दोस्तों ने भी नहीं किया एफसीपीएस तो मैं भी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप गो फॉर इट, मे बी यू कैन चेंज देयर लाइव्स आल्सो, और योर लाइफ कैन चेंज। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव के एफसीपीएस का स्कोप डेफिनेटली है, रहेगा। और कुछ नहीं तो आप एक बेटर सर्जन तो है ही ना, एग्जिट एग्जाम आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है, और उसके बाद आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक सिंपल बीडीएस ग्रेजुएट को नहीं मिल रही होती। तो कीप दैट इन माइंड। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि फॉरन 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 लाइक मैंने तो पार्ट 1 भी कर लिया, एमएम भी निकाल लिया, पार्ट 2 भी कर लिया, और आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वाज सपोज्ड टू गेट, ऐसा नहीं है। मेरे कंसल्टेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग करने के बाद भी, पार्ट 2 क्लियर करने के बाद भी, टुक मी अराउंड 10 years टू डू व्हाट आई एम डूइंग। तो आई बिलीव दिस इज फैक्ट्स व्हाट इज सेइंग कि अभी आपने बहुत मेहनत करनी है। आप ये नहीं समझिए कि आप 4 साल की ट्रेनिंग करके यहाँ से निकलेंगे, 6 महीने 1 साल पढ़ेंगे और अपना एग्जिट एग्जाम निकालेंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी अ बिग name in the field. You have to keep working. You have to do cases. You have to blog them, record them, publish them, do some research, reach to the top, and then you'll see what Allah has planned for you. So this is what I believe. तो डॉक्टर कमाल, आपको लगता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस और रेजिडेंसी साथ साथ चल सकती है? CPSP मना करता है इस पे। अच्छा। CPSP का रूल है, if resident is doing residency, they should not do, because जो belief है वो ये है कि it's going to hinder their residency. I believe this. At the start, as I told you, there was a time I started my clinics, but my clinic was unfortunately, due to COVID lockdowns, it was not able to function well. So it was like a dead horse to me, which I was carrying. So when my residency started, at the start it was quite boring. Like I was just going there, coming back, and routine cases, extractions यहाँ, extractions वहाँ, वहाँ एक case हो गया। लेकिन उसके बाद जो मेरे कंसल्टेंट्स थे, ही स्टार्टेड टेकिंग मी ऑन हिज पर्सनल केसेस, मतलब कि तुम भी चलो साथ, क्योंकि पहले सीनियर्स होते हैं ना, जैसे R4, R3, R2, R1। तो व्हेन आई वाज R1 देयर वाज नो स्पेस फॉर मी, but with time as seniors they completed their residency and I started to climb the ladder of seniority, my consultant also started bring me there कि यार तुम आओ, तुम केस में खड़े हो, हम फ्रैक्चर करने जा रहे हैं, हम कैंसर करने जा रहे हैं, नेक होगी। बहुत मुश्किल हो गया मैनेज करना, बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते। तो आप सुबह से गए, लाइक आपकी सुबह 9 बजे यू हैव अटेंडेंस आपने लगाई है, उसके बाद आप 2 बजे आउट की, फिर सर के साथ चले गए, देन यू आर कमिंग एट अराउंड 9 and 10 इन द नाइट और इवनिंग। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, पेशेंट आपका थोड़ी वेट करेगा, क्लिनिक आपकी कैसे चलेगी? तो इस वजह से मैंने फिर क्लिनिक को पार्ट टाइम ही किया हुआ है, अगर कोई रिलेटिव हो या कुछ हो। वैसे कोई मेरी क्लिनिक अभी नहीं है। आई बिलीव रेजिडेंसी के बाद इंशाल्लाह जो है इस पे फोकस करेंगे। लेकिन लोग करते हैं। अच्छा। जी
तो डॉक्टर कमाल, आप कैसे मैनेज करते हैं लाइफ को, रेजिडेंसी को, प्रोफेशनल वर्क को? लाइफ को, रेजिडेंसी, प्रोफेशनल वर्क अभी यही है मेरा सारा। रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी के साथ साथ जो है मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा, ग्रूमिंग सेशंस मैं करता हूँ बच्चों के, जिसमें जो है वो जैसे ग्रुप्स हो गए एंड दे आर गोइंग टू कम टू मी। टीचिंग भी मैंने की है, पार्ट 1 की तो बहुत टीचिंग की है। बहुत सारे मेरे जो जूनियर्स हैं, सारे जो हाउस अफसर्स थे, मोस्ट ऑफ देम कंप्लीटेड देयर स्टेप 1 एंड दे आर नाउ रेजिडेंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर माय जूनियर्स नाउ। तो टीचिंग भी होती है और साथ में जो है वो पढ़ाई। अभी मेरा जो दोस्त जिसकी मैंने आपको बात बताई थी, वो रेजिडेंसी उसकी कंप्लीट हो रही है, तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि माय एम इज द एग्जिट एग्जाम, आई डोंट वांट टू डू एनी क्लिनिक, आई लर्न व्हाटएवर आई वांट टू अर्न, but my aim is the exit exam, so I'm studying. He comes to the office, he works, he gives full time and then go back. अगर सर के साथ नहीं केस हो रहा तो वो पढ़ ही रहा है। तो मेरा भी यही है, जो आप थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बुकिश टाइप का पर्सन हूँ। मुझे जो है वो एक सब्जेक्ट की या एक टॉपिक के, आप जैसे आप कहेंगे ना, जैसे कि इस बुक में से नहीं, इसमें से ही पढ़ लिया, उसमें से ही पढ़ लिया, पीटरसन से ही पढ़ लिया, फॉक्सिका से ही पढ़ लिया, तब जाके मुझे सुकून आता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई बोले कि आपने पीटरसन से पढ़ा है, फॉक्सिका में नहीं देखा, तो ये आई डोंट बिलीव दिस थिंग। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट्स को भी ये कह रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग थिंग्स and they are managing their things, but I believe it's going to hamper their growth both clinically and the academics also. तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है वो अपनी एक चीज एट अ टाइम करें, गिव 100%। आपके जो हॉबीज हैं, आप कह सकते हैं, जैसे मेरा ये डॉक्टर KM है प्लेटफॉर्म, और आप इस पे टाइम दे दे, या कोई प्रोडक्टिव और चीज है, यू कैन गो वर्कआउट, यू कैन डू समथिंग एल्स, लाइक समथिंग विच इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन बोथ हेल्थ एंड स्टडीज। वो आप कर ले, ज्यादा बेहतर है। 4 साल हैं, गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। उसके बाद आप क्लिनिक करें, आप हॉस्पिटल करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप कोई कोचिंग सेशंस वगैरह देते हैं? लाइक अगर मेरे सर्कल में, मेरे अराउंड लाहौर से कोई स्टूडेंट्स या हाउस ऑफिसर्स आपसे कोचिंग लेना चाहें तो आप अवेलेबल होंगे? देखिए, कोचिंग लेना चाहें या एकेडमी, ऐसा मैंने इतने बड़े लेवल पे किया नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ओपीडी के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मैं कराची मेडिकल डेंटल हूँ, KMDC में कॉलेज में हूँ, तो वहाँ पे ओपीडी होती है हमारी, डेंटल ओपीडी, जिसमें नॉर्मली एक्सट्रैक्शन एंड सर्जिकल थिंग वी आर डूइंग दोस थिंग्स चेयर साइड। तो नॉर्मली आफ्टर 12 मिड डे, उसके बाद जब टाइम आ जाता है थोड़ा, क्योंकि टाइम 3 बजे तक का होता है हमारा, तो उस टाइम में फिर या तो आप जैसे कि दोस्तों के साथ घूम लें, फिर लें, या कोई मौज मस्ती कर लें, या उस टाइम पे बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। अच्छा। लाइक दे नो, दे आर स्टूडेंट्स देयर, दे कम देयर, लाइक दे कैन आस्क मी एनीथिंग, कि आप सर एंडो का बता दें, या आप ये बता दें, ट्रॉमा बता दें, या टक्कर पढ़ा दें थोड़ी सी, या कुछ नहीं। तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने ऐसे ही मजाक में एक को बोला कि यार, आपने सूचरिंग सीखनी है तो आप सूचरिंग किट लेके आए, एंड नेक्स्ट डे दोस 5 to 6 जो स्टूडेंट्स थी, वो सब अपनी किटें ले आई। डॉक्टर कमाल आदम ने सूचरिंग सिखाया, दे वर 3rd ईयर स्टूडेंट्स, तो अब माशाल्लाह से वो दे आर हाउस अफसर्स नाउ। तो ऐसा भी हुआ है। तो इस तरीके से होता है, प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं आगे, कि कोई हम क्लिनिक करें नहीं करें, हम अटैचमेंट करें नहीं करें, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग दीज थिंग्स, आप कहीं करते हैं वहाँ आ जाएं। तो मैंने आपको बताया, मैं उनको क्या कहता हूँ कि अभी पढ़ लें, आप हाउस जॉब में आइएगा तो ये भी कर लीजिएगा, क्लिनिक्स कहीं नहीं जा रही, वो वहीं है। आप अभी पढ़ लें, टाइम चला गया तो आप बड़े परेशान होंगे। दूसरा ये कि एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की, वो थोड़ा सा मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है, तो इस पे फोकस नहीं किया जाता है कि व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट। अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाई इज दिस, कि मैंने जहाँ भी देखा है, कहीं जिस भी गवर्नमेंट सेटअप में मैं गया हूँ, कि ड्रेसिंग सेंस एंड द अपीयरेंस एंड द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, वो जीरो है ऑलमोस्ट हर जगह। ये आई एम सॉरी दिस थिंग, चप्पलों में आ रहे हैं ओपीडी में, एंड यू नो दिस थिंग्स आई रियली डोंट लाइक। शलवार कमीज में आप ओपीडी में आ गए, तो आप फ्राइडे के दिन पहन के आए, कोई मसला नहीं, मैं भी पहन के जाता हूँ, फ्राइडे के दिन नमाज पढ़नी होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मंडे है, कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, यू आर नॉट इन योर स्क्रब्स, एंड
आपके बाल कहाँ जा रहे हैं या आपकी दाढ़ी कहाँ जा रही है। तो इस पे एक थोड़ा सा मैं ज़्यादा काम करता हूँ कि यार आप ऐसे नहीं करें, आप थोड़ी ड्रेसिंग सेंस बनाएं, थोड़ा सा अपने अपने ऊपर भी टाइम लगाएं। सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी करनी है। अगर आप इस तरीके से क्लिनिक में बैठे होंगे तो पेशेंट कैसे आएगा आपके पास। एक जैसे कि आपकी बैड हैबिट है, डॉक्टर की बैड हैबिट है, या डॉक्टर अपना ख्याल नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल क्या करेगा। ये थोड़ा सा चेंज आया है, ये मैंने थोड़ा सा देखा है। या तो मेरे सामने वो ऐसे करते हैं, या पता नहीं, आई एम नॉट हार्ड फास्ट अबाउट इट, बट स्टिल आप ये कह सकते हैं कि मे बी आई पॉइंट देम आउट कि यार ऐसे नहीं आया करो, स्क्रब पहन लो, जॉगर्स पहन लो, अगर आपने जीन्स पहनी है तो शर्ट टक इन कर लो, या ड्रेस थोड़ा सा ख्याल कर लो। तो नॉट लाइक दे फील बैड अबाउट इट, सारे दोस्ती हैं मेरे एंड दे लाइक टू बी अराउंड मी, बट ये एक थोड़ा सा आई बिलीव इस पे काम होना चाहिए कि आपने किस तरह बात करनी है, व्हाट आर योर एडिकेट्स, हाउ शुड यू स्टैंड। मैंने एक हाउस अफसर थी, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, और मैंने उनको अभी बताया कि देखें आपने पेशेंट के सामने किस तरीके से खड़ा होना है, बात किस तरह करनी है, एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल होता है। और ये सब मैंने उसको बताया कि देखें आपने शोर नहीं करना, आपके अगर असिस्टेंट खड़ी हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, वो मजाक मस्ती ना करें, डोंट यूज सम वर्ड्स विच कैन अफेक्ट कोई ऐसे अल्फाज नहीं यूज करें। तो ये सब मैंने उनको बताया। उसके बाद मैं पीछे जाके टेबल पे बैठा हूँ, मैं लाइक वो अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि डॉक्टर कमाल हम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कोई मसला हो तो। मैंने कहा था तुम कर लो, मैं देख रहा हूँ। अब मैं जाके ऐसे ही बैठा है, वो ऐसे यूं पीछे मुड़ी है कुछ अपने दोस्त को कहने के लिए, और उसके पूरे बाल जो हैं वो पेशेंट के चेहरे पे ना यूं, लाइक लिटरली स्लैप द पेशेंट। तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा, तो उसने केस किया, सब किया। उसके बाद मैंने सोचा आपसे गलती हुई है। शी वाज लाइक मैंने तो दांत सही निकाला है, पूरा दांत निकाला है, मैंने तो रूट भी नहीं तोड़ी। मैं कहा नहीं, आपसे गलती हुई है, आप जरा नोट करें, याद करें। शी हैड नो क्लू अबाउट। मैंने कहा देखें अगर आप इस तरीके से, आप एक तो ये कि वी डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम पेशेंट इज हैविंग, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। और दूसरा अनएथिकल सी बात, आप हेयर टाई कर लें, आप कैप पहन लें। इसी तरीके से जो है अक्सर जो कैजुअल ड्रेस में बिल्कुल आ जाते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ गाउन पहन लो भाई, घर लेके जाओगे ये कपड़े। अब हम लोग के जैसे ये स्क्रब्स हैं, मैं स्क्रब आई एम बिग फैन ऑफ स्क्रब। मोस्ट ऑफ पीपल दे ऑलवेज लाइक आप हमेशा स्क्रब में ही होते हैं। अगर मैं जो है वो ड्रेस पैंट या शर्ट पहन लूँ तो दे आर शॉक्ड। तो मैं कहता हूँ कि स्क्रब्स का फ़ायदा ये है कि ये सीधे बस वॉश होने जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं उसको पहन के जो है वो कहीं घर में कोई काम कर रहा हूँ, एक्टिविटी। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हर किस्म के पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा मेरा फोकस है, इस पे थोड़ा मैं करता हूँ। और यही है, बाकी पढ़ाई है, फ्री टाइम में पढ़ाई है, और सोशल मीडिया एंड दिस स्टफ। आपका काम बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया मैंने आपका देखा है, मैं टैग भी करूंगी उसको वीडियो के साथ। अच्छा, आप कोई और मैसेज आप देना चाहें यंग ग्रेजुएट्स को, अपने जूनियर्स को या कोलीग्स को जाते जाते? नहीं, मैं यही उनको देना चाहूँगा एक मैसेज के कीप वर्किंग हार्ड। मेरा एक, अगर आपने फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल देखी होगी तो उस पर मैंने एक इन्फो में एक वो लिखा हुआ है, एक स्लोगन, मैं आई बिलीव इट के हैव फेथ, स्टे हम्बल एंड बी कॉन्फिडेंट। तीन चीज़ें हैं, आप ईमान पूरा रखें। देखें, ये सोचना है कि हम मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या मेरे जो वट एवर आई एम प्लानिंग दोज थिंग्स आर नॉट फ्रूटफुल और नॉट हैपनिंग, तो अल्लाह ताला मेरे साथ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, सबके साथ अल्लाह ताला ने किया, सबका टाइम आया है, सब इस फेज से गुजरे जिससे अब आप गुजरेंगे। तो हैव फेथ, बी हम्बल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। थोड़ा सा उनके पास आप ये कह सकते हैं नया नया पैसा आया, या उनकी क्लिनिक चली, या उन्होंने कोई पोजीशन अचीव की, एंड सडनली देयर बिहेवियर्स आर चेंज। सही है, दोस्तों में तो चलता है, लेकिन ये कि आप पेशेंट्स के साथ, आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। आई बिलीव कि एक बंदे को या एक पर्सन को जो है वो हम्बल होना चाहिए हर लिहाज से। आप जब किसी रूम में या ओपीडी में या वार्ड में या ओटी में कहीं भी आए, तो लोग आपको देख के मुस्कुराएं, दे शुड गिव अ स्माइल रेदर देन दे स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। बी दैट पर्सन के जो सबको खुश रखे, इन अ सेंस, मतलब कि कोई आपसे नाराज ना हो, और आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन ये कि
सबका एक इज्जत और वो होनी चाहिए, रिस्पेक्ट. एंड लास्ट इज बी कॉन्फिडेंट. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. आपके अंदर करेज होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू फेस योर फेलियर्स, योर प्रॉब्लम्स. मैं इसमें एक बात आपको बताता हूँ कि मुझे नीडल फोबिया था. अगर कोई नीडल निकाल रहे और मैं वहाँ हूँ तो आई स्टार्ट टू फील डिजी. तो now you can say that you are a dental surgeon, you are playing with needles every day in the OPD. तो उसमें मेरे फ्रेंड का ही बहुत बड़ा हाथ है कि उसने जो है इसको ओवरकम करने में मेरी हेल्प की. आई रिमेम्बर इट वाज थर्ड ईयर ऑफ माय अंडरग्रेजुएट टाइम, एंड at the end of surgery rotation you have to do an extraction if you want to get good marks ना. एक इस तरह की पॉलिसी थी. तो सबने कर ली थी. कोई ना कोई फ्रेंड उनका आ गया था. अब मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो नीडल, मैं नीडल निकालूं उसको कैप से और उसके बाद स्टार्ट फीलिंग दिस प्रॉब्लम. तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला आई विल हेल्प यू. तो उसने मेरी हेल्प करके उसने मुझे एक इन्फिल्ट्रेट जो है वो दिलवाया अपर 6 का. और वो द मोमेंट द नीडल पियर्स द म्यूकोजा एंड आई फेल्ट बोन, उसके बाद मुझे वो नीडल फोबिया खत्म हो गया. तो मैंने कह रहा है ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है आपका. फर्स्ट योर फियर इज फॉर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तुम डर रहे थे कि ये नीडल में कहीं और ना चुबा दूं, तुम ये मुझे ना चुभ जाए या कोई इंजरी ना हो जाए. तुमने एक दफा किया, अब तुम्हें नहीं होगा. एंड दिस लिटरली आई बिलीव व्हाट हैपेंड. ऐसे ही है. तो मैं ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको. वही बात आया थी जो हमने शुरू में की थी कि गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों में जो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वो काम कर लेंगे. आप उनको बोले ये करना है, ये दांत, वो दांत निकाल के लाके आपके हाथ में देंगे, ये लें. अब उसके साथ कोई और इशू हो वो अलग बात है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है. और ये आई बिलीव कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो चैलेंजेस ले लेते हैं लाइफ के, घबराते नहीं है, काम करने से शर्माते नहीं है, भाग दौड़ में उनको प्रॉब्लम नहीं होती. वो बस से चले जाएंगे, बाइक पे आ जाएंगे, दोस्त सारे एक गाड़ी में भर के कहीं चले जाएंगे. तो ये कॉन्फिडेंस होगा तो होगा ना. अब आप शाय हैं, यू आर एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, तो आप किस तरीके से इस फील्ड में आएंगे. अल्टीमेट आपकी जो जो आपका काम है वो है ही मार्केटिंग. अगर आप क्लिनिक करते हैं तो यू आर गोइंग टू फेस डिफरेंट पीपल. पीपल आर गोइंग टू कम थ्रू द डोर एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू यू एंड दे आर गोइंग टू टेल यू योर प्रॉब्लम्स. अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप जो है वो घबराते हैं, शाय पर्सन है, इंट्रोवर्ट हैं, खामोश हैं. हाउ आर यू गोइंग टू कन्वे योर मैसेज? व्हाट इज योर ट्रीटमेंट प्लान? हाउ आर यू गोइंग टू टेल देम? वो तो बोलेगा डॉक्टर साहब पहले आप थोड़ा सा अपना इलाज कराएं, फिर मैं आ जाऊंगा. वो चला जाएगा किसी और के पास जिसके पास बेटर वोकल स्किल्स होंगी, जिसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जिसको अपने आप को प्रेजेंट करना आता होगा, तो कॉन्फिडेंट होगा. तो ये है, हैव फेथ, स्टे हम्बल एंड बी कॉन्फिडेंट. ये डॉक्टर के मोरल मैक्सिलोफेशियल का मैसेज है सबके लिए. सही. थैंक यू सो मच डॉक्टर कमाल. आपने इतनी अच्छी बातें की हमसे, इतनी ज़्यादा इनसाइट्स शेयर की, कैंडिडली सब कुछ बताया. इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम जो है आपके साथ FCPS के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट्स की कोचिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे. आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और मैंने भी जो है all the best wishes for your platform. I hope that this grows and becomes a huge thing on the social media and reaches to every corner of the dentistry world in Pakistan and internationally. मुझे बहुत अच्छा लगता है. And this is my first time where I'm basically talking to someone. मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी इस तरीके से लाइव नहीं आता. तो मैं उस दिन बैठा हुआ यही सोच रहा था जब मैंने आपसे बात की थी कि मैं तो कभी अपने चैनल पे भी लाइव नहीं आया. और इस तरीके से एक पॉडकास्ट, तो इट्स आई एम ट्रूली हम्बल्ड. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank And you. I'll appreciate more podcasts, no issue. Thank So you. It was a pleasure having you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.